Hello friends, you are welcome in Ganesh English classes 0.1. Actually today we will discuss about the character of Holy NCERT class 10th. At last time you will find the summary in details, so please try to understand speech at first, then after you will note down your character. We know that Bholi was the fourth daughter of Ramlal. The nickname of Bholi was Sulekha. When she was very little, she was very beautiful girl, but due to pox marks, she was looking very ugly. She was neither good looks nor intelligence. When she was very little child, one day, she fallen down from the cot and her brain damaged. Used to speak any word double means purple. Purple means she could not speak any word with a very good pronunciation. Means when she became 5 years old, then she started to speak. We were thinking that no any bridegroom will be agree to marry with her because she is neither good looks or intelligence. Means it is a fault of Voli. But one day Ramlal thought about this problem and he admitted Bholi into a primary school. At first time, it was not a rule and regulation that girls will be take education, but he admitted Bholi into a primary school. On that time, she could not speak any types of word, but due to the love and care of the class teacher, she started to speak any word. The class teacher said, Holly, don't worry, you will be the most intelligent girl not only in your class but in your village also. And all the students, they were making joke on her, but class teacher was all in all with Bholi. The class teacher always used to give so many rule and regulation about discipline, so it was very important for Bholi. Bholi always she was thinking, and the class teacher used to give a support. I am with you, Bholi. Don't worry. So Bholi started to speak any word, and it began to good pronunciation. By and by, Bholi became most important girl in the class and in the village also. But sometimes times after, when Bholi became a young girl, on the time Ramlal, he was walking here and there for a bridegroom, but to the ugly face and very little, no any bridegroom used to agree for marry with her. But at last time, Ramlal met with December Nath. December Nath was a aged person, and he was a very rich person, but he was very greedy man. He was very greedy man. He agreed to marry with her, but he demanded dowry. If you will give me dowry, then after I will marry with your doctor. Ramlal said, yes, I will give you money. I will give you dowry. And Ramlal gave some dowry, but he said, raised amount I will give you after the marriage. December Nath agreed that you will give me dowry before marriage unless
I will not marry with your doctor. Ramlal became angry. Yes, I will give you this amount, this left amount before marriage. But Decembernath said, please give me dowry at first time, then after I will marry with your doctor unless I am not able to marry with your doctor. Ramlal requested of Decembernath, please do marriage. After the marriage, I will give you amount. But Decembernath said, no, 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 without money, I will not marry with your doctor. He requested continue, but Decembernath did not agree to marry with Bholi without rest of dowry. On that time, Bholi stood up and said, you love dowry, not me. So I will not marry with you. You are a greedy man. You have no any faith on me and my parents. My future will be dark. It is better to live unmarried. And he declared, you can go out from my house. You are a greedy man. I will not marry with you. I refuse to marry with you. You can go out from my house. On that time, Bholi, due to angry and due to the confidence girl, she announced that I will live unmarried in life. Parents, don't worry. I am with you. I will solve your problem whole life. And I will never marry in my life. I will live unmarried. She refused to marry with Decembernath and she became a good teacher on that same school. So we can say in short that Bholi was very brilliant girl. She was a confident girl. She was very little, very ugly, but her brain was so great. And she refused to marry with Decembernath and she became a good teacher. दोस्तों आप क्या करेंगे, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और ताकि क्या करेंगे आप इसे अपने कॉपी में फेयर करके फिर आगे आप इसे लिख सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भोली थी वो रामलाल की चौथी पुत्री थी। उसका बचपन का जो नाम था वो सुलेखा था, लेकिन वो बहुत ही सिंपल रहा करती थी, इसलिए उसका नाम भोली रखा गया था। ये भोली जो थी ना बचपन में बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन संयोगवश एक बार वो जब छोटी थी तो खटिया से वो गिर जाती है और उसका कुछ ब्रेन का पार्ट जो है ना वो खराब हो गया। दूसरी बात है जब वो 2 साल की हुई तो उसको चेचक का प्रभाव पड़ा और चेचक बीमारी के कारण उसके पूरे बॉडी में काला काला धब्बा हो गया था और इसीलिए उसका चेहरा क्या हो गया, प्योर चेंज हो गया, सडनली चेंज हो गया। वो बचपन से छोटी थी और देखने में भी उतनी अच्छी नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो चेचक का जो बीमारी हुआ उस बीमारी के कारण उसका चेहरा पूरा क्या हो गया, खराब हो गया, क्रूप हो गया। इसलिए उसके जो माता पिता थे वो सोच रहे थे कि ये बच्ची का शादी कैसे होगी, इसका फ्यूचर कैसे होगा। वो इसके बारे में चिंतित थी, वो इसके बारे में पूरा सोच और चिंतन मनन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो न तो अच्छी देखने में थी और न ही दिमाग से ज़्यादा तेज थी। इसलिए उसके घर परिवार के सारे लोग क्या थे, वो चिंतित थे। क्यों? इसकी जो बहन लोग थी वो बहुत सुंदर थी और उनकी शादी विवाह करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन भोली के लिए उसके लिए बहुत बोझ बन गया। उस समय का ये सिस्टम था कि कोई भी गर्ल्स लोग वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय नहीं जाएंगे। लेकिन इसने क्या क्या, रामलाल ये सोचा कि यदि हम इससे कुछ नहीं पढ़ाते हैं तो ये एक बोझ मेरे कपार में बन जाएगा, और इसीलिए उसने क्या किया, एक छोटा सा स्कूल में इसका नामांकन करा देता है।
और जब इसका नामांकन हो गया, जब वो स्कूल गई तो वहाँ पर जैसे गया तो वहाँ के सारे बच्चों ने क्या किया, पूरा इसका मजाक उड़ाया। लेकिन जो क्लास टीचर थी वो बहुत ही अच्छी थी। उसने भोली को ये संतावना दी कि भोली, तुमको टेंशन लेना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चौबीसों घंटा 24 आवर्स मैं आपके साथ हूँ, और आप बेहिचक बोल सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा उसके लिए मैं हूँ। और जो क्लास टीचर थी ना, उसको बहुत ज़्यादा अनुशासन का जो नियम होता है, अपने आप में कॉन्फिडेंस कैसे हम जगा सकते हैं, ये तमाम बातों को रखती थी, जो भोली के लिए बहुत ही वरदान सिद्ध हुई। वो उनकी बातों को हमेशा सोचती थी और उसके अनुसार, उनके अनुरूप वो चला करती थी। क्लास टीचर ने कही और शिक्षिका ने कही कि भोली, तुम सिर्फ इस क्लास में ही अच्छी लड़की नहीं बनोगी, बल्कि तुम अपने गांव इलाकों में भी क्या होगी, बहुत अच्छी बनोगी, और सारे लोग तुम्हें एक सम्मान की भांति आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। और संजोग ऐसा ही हुआ। लेकिन कुछ दिन के बाद जब वो यंग हो गई, यानी जवान हो गई, तो इसकी हमको जानते हैं कि जो माता पिता होते हैं ना, उनका एक सोच होता है कि जब बच्चियां बड़ी हो जाती है उसकी शादी के लिए वर ढूंढा करते हैं। तो रामलाल भी यही किया, वो हमेशा वर ढूंढने के लिए वो घुमा फिरा करते थे। हमेशा बहुत सारे जो लड़के इन्हें देखने के लिए आए, लेकिन कोई भी इसे पसंद नहीं किए। क्यों? कि इसके चेहरा बहुत ही क्या था, क्रूप था और बहुत छोटी थी। ये बेचारा हार गया। अब क्या हाल होगा मेरा भगवान, इस बच्ची वो विवाहित रह जाएगी, कोई इसे लाइक नहीं करता है, पसंद नहीं करता है। इसी तरह घूमते घूमते एक बार विशंबर नाथ नाम का एक युवक मिला, जो शादीशुदा थे, लेकिन उसकी वाइफ गुजर गई थी। उनके छोटे बच्चे भी थे। वो इनसे शादी करने के लिए सहमत हो गए, लेकिन उसने डिमांड किया कि मुझे दहेज चाहिए, दहेज के बिना मैं शादी नहीं कर सकता। तो उसने बोला ठीक है, मैं आपको दहेज दूंगा। उसे दहेज दिया, लेकिन कुछ दहेज बकाया रह गया। जो रामलाल था उसने रिक्वेस्ट किया कि जब शादी होगी ना, उसके समय मैं आपको ये पैसा दे दूंगा। लेकिन बाराती आ गई, गाजा बाजा डांस पूरा चल रहा था, सारे लोग झूम रहे थे, मस्ती से नाच रहे थे। उसी समय रामलाल का दिल धक 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 कर रहा था। क्यों? कि उसके पास पैसे नहीं थे, और बिना पैसे से ये अब क्या होगी शादी। कहा जाता है, जिनके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जिनको कभी कष्ट नहीं हुआ है, वो कष्ट का मर्म को क्या जानता है। ये बेचारा इस शादी के लिए हर कुछ बकरी बकरा जो भी था बेच दिया, लेकिन पैसा नहीं हो पाया। विशंबरनाथ डिमांड किया कि पहले जो बकाया रकम है उससे दीजिए, इसके बाद मैं शादी करूंगा। रामलाल कर जोड़ते हुए बोले, विशंबरनाथ जी, मैं आपको शादी के बाद सारा पैसा दे दूंगा, लेकिन मेरे पास भी पैसा नहीं है। उसने बोला, बिना पैसा से मैं आपको शादी नहीं कर सकता, ऐसा कभी हो नहीं सकता। आपने रिक्वेस्ट किया था कि शादी के पहले मैं पैसा दे दूंगा, लेकिन आपने नहीं दिया, तो मैं शादी नहीं कर सकता। और रामलाल बेचारा विनती पूर्वक आदर के साथ वो बोलते हैं कि पैसा मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास पैसा है ही नहीं, कैसे दूंगा बोलिए, शादी के बाद मैं आपको पैसा दे दूंगा। ये हमेशा रिक्वेस्ट करता रहा, लेकिन ये क्या करता रहा, इनकार करता रहा। उस समय भोली तनतनाते हुए उठती है और बोलती है कि ओह, ऐसा टेंशन मत लीजिए, आप तो पैसे के भूखे हैं, आप पैसे के लिए शादी कर रहे हैं, आप तो मुझे लायक नहीं करते। मेरी ज़िंदगी जो है ना, मेरा भविष्य जो है ना, बहुत ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पर्सन है बहुत लालची है, और ये क्या लालची के कारण वो पैसे लेकर शादी कर रहा है, उससे मुझसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए पिताजी आप टेंशन मत लीजिए, मैं इस लड़के से शादी नहीं रचाऊंगी, इसलिए क्योंकि ये व्यक्ति मेरे लाइफ में कभी भी सुख चैन से जीने नहीं देगा। उसने कही कि आप मेरे घर से तुरंत निकल जाइए, मैं आपके साथ शादी करने वाली नहीं हूँ, मैं आपसे शादी नहीं करूँगी, आप मेरे घर से चले जाइए। और अंतुगत्वा विशंबरनाथ को लौटना पड़ा। अंत में
भोली बोली, पिताजी माताजी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके पूरे जिंदगी का जो भी प्रॉब्लम हो ना उसे मैं सॉल्व करूंगी। और इस प्रकार से धिक्कार की घोषणा की और अंतोगत्वा अंत में वो एक कुशल शिक्षिका उसी स्कूल की बनी और आराम से अपना जिंदगी जीवन यापन करने लगी। तो दोस्तों आप इसके आशय को समझ लिए होंगे। ठीक है दोस्तों, बाय, थैंक्स, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।